even when I was a pharmacology student, but our professors didn't know what is first pass effect. Now we know what it is. Now then what we do, that is not enough. So we now know pharmacokinetics, pharmacodynamics. So we give more dose, more drug, and all these do what is called adverse drug reactions, ADR. So mind you, every drug has an adverse drug reaction. Every drug may not be useful to you, but every drug has an adverse drug reaction. That's why I coined this phrase, while there is no pill for every ill, there is an ill following every pill. It's absolutely true. It's out of experience, long experience I have said, for every pill there is an ill. So I tell doctors, tell the patient before you give a tablet, two things, A, N and T, B, ADR. N and T is number needed to treat, because all our drugs are statistically significant. Not useful for everybody that you give. Supposing I give you a drug like statin, let us say. The N and T is 300, which means 1 in 300 people whom I prescribe statin will get benefit. So some of us, are fanatics, they say, okay, 1 in 300 chance I'll get benefit out of statin, I'll take it. Then tell him what is the ADR risk, 5%. That means 299 people who take the drug unnecessarily have 5% risk of almost dying. So now look at the whole balance. 1 patient gets benefit, 299 don't get benefit. 6 into 299 is about 18, 17 people. 17 people die. So in the balance, I have given statin to 300 Punites, and I can be very certain of benefit for 1 person. And I am absolutely certain of harm to 17 people. Nice, isn't it? Now the largest study of antihypertensive drugs in the what is called the MRC, mild to moderate hypertension study, which is published in 1985, showed NNT for antihypertensive drugs is 850. To benefit 1 patient with the fond hope of stroke or heart attack avoidance in the next 5 years, I am harming 850 people unnecessarily. And there, of course, the ADR risk is 2%, which means 8.5 into 2 is 16 people. 16 people will die in next 5 years. 1 man might be saved. What is the balance? If you know all this, will you take these drugs? तो ये बोलते हैं कि ड्रग्स लेने ही नहीं चाहिए. अच्छा, दूसरा इनकी स्टडी है, एक बार किसी पूरे वर्ल्ड में जब डॉक्टरों की स्ट्राइक हुई तो वहां पे मौतें आधी हो गई. इसका मतलब क्या है? इन्हीं के मुंह से सुन लो भाई अपना पंकज, डॉक्टर ऑन स्ट्राइक, अब आधा घंटा क्वेश्चन आंसर का देंगे आपको. Nothing to do with health. Health is completely out with the domain of doctors, hospitals, nurses and things like that. Actually, a 14 countries, industrialized countries study showed where there are more doctors per capita, more hospitals and more specialists, there's more death, less health and less longevity. I'm not joking, I'm seriously telling you. This 14 country study is a very exhaustive study. And there was a study done by the WHO in Thailand years ago, I think about 40 years ago, where in Thailand, Bangkok they took. There are about 5 systems of medicine concurrently working. Pure Western medicine, as we call as medicine, then pure Chinese medicine, integrated Chinese Western medicine, then Samoa system where the father tells the son when he is dying as to how he should treat his patients, and it goes on generation-wise. And the last is of quackery. And they did a study prospectively for 5 years, very well controlled study, which showed collectively at the end that all systems of medicine, mark my words, all systems of medicine were equally effective on society. This was 40 years ago. People were nonplussed. People said, oh, something wrong. No, now we know everything is right. Actually, that was very, very right. You would be surprised to know doctors went on strike in several countries over the last 25 years. Different times. Saskatchewan in Canada for 3 months, 25 years ago. Bogota in Colombia for 3 months, about 20 years ago. Los Angeles County 15 years ago. Israel recently, about 2 years ago. And Dublin, so about 5 years ago. Each one of these places, now audit shows in retrospect, when doctors went on strike and nurses ran the hospital, death rate almost fell down precipitously. I'm not joking. I'm seriously telling you. Whatever I say here, even a word is not outside the realm of what you think is science. I don't think that is science, but you think it is science. So I'm telling you scientific quote-unquote evidence in reduction. तो अभी जो आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ कि फरीदाबाद में एक हरीश सचदेव करके डॉक्टर हैं, सेक्टर 14 पे उनका क्लिनिक है. वो खुद एमडी हैं
अच्छा, उनकी वाइफ एमडी है, अच्छा उनकी बेटी एमडी है, उसका दामाद एमडी है, उसका बेटा एमडी है, बेटी की वाइफ एमडी है, तो घर में कितने एमडी हो गए? 6 एमडी हो गए। वो काम करते करते उनका क्या हाल हुआ और वो इस नेचर की ओर से कैसे ठीक हुए? वो सुसाइड करने जा रहे थे, खुद डॉक्टर। उनका काम करते करते शुगर बढ़ गया, शुगर बढ़ने से उनको टेंशन होगी, मेरा लीवर खराब हो जाएगा, मेरी किडनी खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर हरीश, उनके उनके उन डॉक्टर आज भी हैं वो। 8-9-10 के चौक के ऊपर डॉक्टर हरीश हॉस्पिटल, माई सेल्फ एम डॉक्टर हरीश शर्मा। मेरी वाइफ है, शी इज ए गायनाकोलॉजिस्ट, और मेरे दोस्त भी बैठे यहाँ भी थे। मेरा बेटा MCH है, प्लास्टिक सर्जन एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। मेरी जो बहू है वो गायनाकोलॉजिस्ट है। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, वो MD माइक्रोबायोलॉजी है। मेरा दामाद जो है वो MD डर्मेटोलॉजिस्ट है। मैं खुद 1987 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ, 21 मई 1987 को जब मैं उसकी खुशी सुनी, तो मैं वहां बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, डॉक्टर के साथ। तो मैंने कहा यार मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे अच्छी तरह से काफी टाइम से, तो देखा यार एक बार शुगर चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो उस दिन मेरी शुगर चेक की, पहले तो मैंने यूरिन टेस्ट करवाया, मेरा 4+ में आ गया। तो मैं वहीं से समझ गया, क्योंकि मैं खुद इसी लाइन का हूँ। उसके बाद क्या हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार डॉक्टर BC गुप्ता, उन्होंने ये कहा कि भाई यार एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। तो मेरी 488 आई। तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे को डायबिटीज है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये फैक्ट है। मैंने अभी सुना यहाँ काफी डॉक्टर भी बैठे हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मेरी तरह के कई हैं ऐसे। पहले मुझे डायबिटीज हो गई 1987 में मालूम पड़ा, हो सकता है मुझे 5-7 साल 10 साल पहले से हो। जो फैक्ट है मैं वो बात आपके आगे रख रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी। फिर वो कहते हैं ना कि खुद क्या करेंगे, चलो यार किसी डॉक्टर के पास, अपने दोस्त के पास जाएंगे। तो हमारे वहीं कई लोग जानते भी होंगे, डॉक्टर रोमिल छोड़ा है, वो भी मेरी तरह MD मेडिसिन है। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी उस टाइम। धीरे 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 हर साल बाद जो भी मैं मेडिसिन खाता था, उसके करीब महीना 2 महीना मैं अच्छा महसूस करता था। उसके बाद मेरी शुगर फिर वहीं के वहीं आ जाती थी और बढ़ जाती थी। करते करते टाइम निकलता गया। एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान, सब कुछ रखने के बावजूद भी मेरी ये हालत हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2008 में, ब्रेक करना, सॉरी 1997 में मेरी बाईपास सर्जरी हो गई। आज से 21 साल पहले बाईपास सर्जरी हो गई, 3 वेसल डिजीज। तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर विजय मोहन कोहली, शायद आप अच्छी तरह जानते होंगे उनके एस्कॉर्ट्स के। तो डॉक्टर विजय मोहन कोहली ने मेरे को कहा कि यार बाईपास सर्जरी होगी तेरी। तो मैंने कहा ठीक है यार। 3 वेसल डिजीज थी मेरे को, तीनों ब्लॉक थी 100%। तो मेरी की उन्होंने रेडियल आर्टरी नीचे से सारा कुछ करके मेरी रिपेयरिंग कर दी उन्होंने। और उस टाइम मेरे को उन्होंने इंसुलिन पे डाल दिया, बिफोर 21 ईयर। तो उन्होंने मेरे को इंसुलिन पे डाल दिया। मैं अपना इंसुलिन लगवाई। बाद में वो कहने लगे कि ये बाद में धीरे धीरे हट जाएगी। खैर मैं इतना डीपली नहीं जाना चाहता उन चीज़ों में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरे को डाईमाइक्रोन, मेटफॉर्मिन, ये वो दुनिया भर की मैंने मेडिसिन खाना शुरू किया। और मैं डॉक्टर होकर खुद भूल गया कि मैंने क्या क्या दवाइयाँ खाई। दुनिया भर की मैंने दवाइयाँ खाई। उसके बाद सन 2008 में मेरे को धीरे धीरे मेरा पेशेंट की वजह से मिस्टर विजयवाड़ा को पता है, क्योंकि वो 11 सेक्टर में था, मेरा सेक्टर 8 में हॉस्पिटल है। तो मेरे पास रश होता था, काम मैं करता था, मेरा धीरे धीरे गला खराब हो गया। तो मुझे बत्रा हॉस्पिटल लेके गए। मेरी मिसेस कहती है कि चल यार वहां चलते हैं। तो वहां पे डॉक्टर कथूरिया ने मेरा देखा, तो मेरा टेस्ट कराया, तो मेरा कैंसर निकल आया। कैंसर निकलने के बाद उन्होंने मेरी रेडिएशन की। आई थिंक 32 रेडिएशन हुई। साल तक मैं ठीक रहा, मेडिसिन उसकी भी इकट्ठी हो गई।
पहले डाइट मेन बात है इनको ले दे के नेचुरोपैथी से ही फ्रूट खा के ये लोग ठीक हुए, तो पूरा डिटेल बता रहे हैं। तो मैं क्या और डॉक्टर माइली का सुनाओ। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हमें को दोबारा पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। डॉक्टर माइली का सुनो, ये एमडी डॉक्टर लिखा हुआ ना। मैं खाता था नहीं ये, हाँ ये भी, ये काफी साल तक चला। ये आज भी डॉक्टर हैं उसके एम्स के, तो इनको भी डायबिटीज हो गया। तो ये डॉक्टर को ज्यादा मालूम होता है कि डायबिटीज से कितना नुकसान होता है, तो दिन रात सोचते रहते हैं मेरी किडनी खराब हो रही है, मेरा ये खराब हो रहा है, मेरा ये खराब हो रहा है। तो एक लेडी उनके पास आई, तो उसने कहा, उसको पहले डायबिटीज था, वो इंसुलिन यही देते थे। तो उसके बाद उन्होंने जब नेक्स्ट टाइम आई तो उनसे उसको डायबिटीज था नहीं, तो उसने कहा पता नहीं इसको कैसे डायबिटीज ठीक हो गया। तो वो डॉक्टर पेशेंट का इंतजार कर रहा है कि मैं पूछूं कि वो ठीक कैसे हो गई। और वो भी आज भी एम्स के हेड हैं, ये वहाँ पे आप मिल सकते हैं इनसे, तो ऐसा वीडियो ऐसा नहीं फेक है ये। तो तो डॉक्टर साहब पेशेंट का इंतजार कर रहे हैं कि मैं वो बताएं कि उसने अपना डायबिटीज कैसे ठीक किया। तो वो आई, तो उसने पूछा भी तेरा चेहरा भी ठीक लग रहा है, तूने अपनी डायबिटीज कैसे ठीक कर ली। तो मैं तेरा ब्लड टेस्ट दोबारा कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने 2 मिनट में भेजा, वो ठीक अपना चेक लिया, उनको डायबिटीज था भी नहीं। तो बोले वो उनका जो लेटर जो उसको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसी को लिया, उसके पीछे वो बोलती गई तू बोल मैं लिखता हूँ। बोले क्या किया, मैंने फ्रूट खाने शुरू कर दिए, मैंने योगा करना शुरू कर दिया, मैंने ये कर दिया। तो उसने कहा कि मेरे को तो फ्रूट खाए तो 15 साल हो गए, 10 साल हो गए। उसने कहा छोड़ो साइंस को। वो रात को गए, वो कहता मैं जो 10 साल में आम नहीं खाए, मैंने खुद डायबिटीज है और 10 साल में जो आम नहीं खाए रात भर, इनके मुंह से सुनो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं क्यों बैठा हुआ हूँ ये भी बता देता हूँ कि मेरा यूरिया क्रेटिनिन बढ़ गया और मेरा रेटिना डैमेज हो गया। मैं आप लोग को देखूंगा तो पहचान नहीं पाऊंगा अगर मेरे पास ना आया। तो वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज इस डिस्टेंसेस, थोड़ा पास आने पर रिकॉग्नाइज कर पाता हूँ। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक मेडिकल डॉक्टर अगर बीमार पड़ जाता है तो ही इज अ वर्स पेशेंट। 24 घंटे मैं अपने बीमारी का ये समझ रहा हूँ कि आज मेरा किडनी फंक्शन डिरेंज हुआ है तो कल और डिरेंज होगा, परसों और डिरेंज होगा। And it's a progressive illness, and one day I will go for a dialysis, and if not dialysis, go for a transplant and whatever. चलिए जो भी है। तो as a good astrologer बोलिए कुछ बोलिए, we are very bad patients. तो इस कश्मकश में मैं बोला कि I have to deal with it. रोज वही 30 पेशेंट 40 पेशेंट देखने की आदत है। एक पेशेंट मेरे पास आई, आज से 3 साल पहले की बात है। तो मुझे याद था कि वो डायबिटिक थी और इंसुलिन पे थी और मैं ही देता था। तो मैं जब उनका रिकॉर्ड चेक किया तो 15 साल से ऊपर हो गया था उनको कोई दवा लिए हुए, एंड शी लुक्ड फिट एंड फाइन। तो मैंने बोला कि आपने किया क्या? तो मैं आपका ब्लड टेस्ट कराना चाहता हूँ। बोली ठीक है। तो मैंने सैंपल के लिए भेज दिया। जब रिपोर्ट शाम को आया तो देख रहा हूं कि HbA1c 5.4, all the parameters normal, and she was looking fit also. Now I kept on waiting for her कि ये पेशेंट कब आएगा। 15 दिन के बाद घूमते फिरते आई वो। तो मैंने बोला कि आज मैं खाली हूँ, आप बैठिए मेरे सामने। मैंने बोला आपने किया क्या? तो बोली कि हमने डाइट करेक्शन किया और मुरादी साई स्कूल ऑफ योगा है, मैं वहां पे सुबह 4 बजे जाती हूँ। तो डाइट करेक्शन क्या किया? तो डॉक्टर साहब का नाम दिया कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी हैं, हमने उनका डाइट खाया और सुबह सुबह उठ के मैं बस से जाती हूँ, योगा करके आती हूँ। तो मैंने बोला क्या डाइट खाती हैं? तो उन्होंने लिखना शुरू किया। तो मैं ओपीडी कार्ड पर ही लिखता गया, जो बोलती गई मैं फट लिखता गया और अपने ग्लास के नीचे रख लिया। आम खाने को बोला हुआ था, मुझे आम खाए हुए 10 साल हो गए थे। लीची खाने को बोला हुआ था, गन्ने का जूस पीने को बोला हुआ था। मैं बोला क्या बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, दिमाग खिल गया। पर फिर भी डरते डरते मैं आम खरीद के लाया।
और जो 10 साल में नहीं खाया था वो एक दिन में खा लिया। फिर उसके बाद केला खरीद के लाया, केला खाया, सब कुछ खाया। फिर डर रहा था, डर तो थी ही अंदर, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में समझ में नहीं आ रहा था। ये सब चीजें पढ़ रखा था, फिर भी कॉन्सेप्ट में नहीं आ रहा था। बट टू माई सरप्राइज विद इन अ वीक 10 days मुझे लगा कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। आई स्टार्टेड रिड्यूसिंग माई sugar tablets, and by 3rd month मेरे पास अपना पूरा रिकॉर्ड उसमें है, एक्सेल शीट में। कभी दिखाऊंगा तो आप लोग भी समझ जाएंगे कि क्या है। From 8 it came down to 7, 7 to 6.8, 6, 5, 5.4, 5.2 के बीच में पिछले 2.5 साल से। I'm not taking any medicine. I'm not taking any medicine. तो अभी खुद डॉक्टरों का ये हाल है कि अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या ठीक करेंगे, मोटी सी बात है। तो अब हम एकदम लास्ट में चलते हैं कि उसमें मेन बात यह है कि ये सब चीज़ें जो बता रहे हैं, वो जो बता रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप कह रहे हो कि जी भाई उबला हुआ खाना है, फल खाने, फ्रूट खाने, तो फिर ये जो फास्ट फूड है इनको देख के हमारे मन पे कंट्रोल होता ही नहीं। तो आपका जो जितना आपने बोला है, डॉक्टरों को दिखाया है, ये सब वेस्टेज है, कुछ नहीं है, बेकार है। हमारा भी टाइम खराब हो गया और तुम्हारा टाइम खराब हो गया, क्योंकि हम चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो जब तक जीभ पे कंट्रोल नहीं होगा, तब तक काम होना नहीं है। तो हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई हमारे को इन चीज़ों पे कंट्रोल कैसे आए, तभी तो सब चीज़ों का फायदा होगा, नहीं तो फिर सब जीरो है। अब आपने सुन लिया, हाँ जी बहुत अच्छा बोला, ऐसा हो जाए जी बहुत अच्छी बात है, और गए और इधर से सुना उधर निकाल के फेंक दिया, बस फिर उसी बाद फिर वही समोसे और कचौड़ियाँ और सब चालू हो गया। तो इन सब चीज़ों में को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो उस पर मैं आधा घंटा बोलूँगा, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन लूँगा मैं। तो अपने मन को समझाएं, मन को कैसे समझाएं, तो मन का नेचर समझना पड़ेगा हम लोगों को कि हमारे मन का नेचर क्या है। तो मन के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे तभी तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे हमारे एक श्लोक आता है उसमें अपने वेदों में, उसका मतलब वो कहते हैं कि ये शरीर जो है एक रथ है। जैसे अपनों में गीता का जब होते उसमें लिखा होता है भगवान कृष्ण जो हैं वो चला रहे हैं, रथ को चला रहे हैं, पीछे अर्जुन बैठा है, आगे 5 घोड़े हैं। तो ये सीन जब भी आता है भगवान कृष्ण का और जब गीता उपदेश का आता है तो ये सीन आता है कि भाई उधर 5 घोड़े हैं और उधर अपना अर्जुन बैठे हैं और उधर भगवान कृष्ण जो है वो बोले। तो ये सीन जो है वो कहते हैं इस सीन को समझो कि 5 घोड़े क्या है, 5 हमारी वो जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं 5, और जो मन क्या है, वो जो लगाम है जो घोड़े के यहाँ से और वो अपना जो भगवान ने पकड़ी हुई है, तो भगवान ने जो पकड़ी हुई है तो वो लगाम जो है वो मन है, और बुद्धि क्या है वो जो ड्राइवर है, और आत्मा क्या है वो पीछे एक सवारी है। अब कहीं जाना है हम लोगों को, अब कहाँ जाना है मालूम नहीं हमारे को। तो अगर हम लोगों को ये रथ को सही डायरेक्शन में कहीं चलाना है तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? ड्राइवर का है। इसमें सबसे बड़ा रोल ड्राइवर का है। अगर ड्राइवर में अगर ज्ञान होगा तो वो कहीं रथ की डायरेक्शन को कहीं भी कर सकता है। तो इसका मतलब हम जो भी गलतियां आज हम कर रहे हैं वो ड्राइवर में कमजोरी है। हमारे जो शरीर का ड्राइवर है वो उसको नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है। तो हमें नॉलेज ऐसी चीज तो है नहीं बाजार से लाके खरीद लो और खा लो और मिल गई। तो नॉलेज को तो भाई अध्ययन करना पड़ेगा। तो हमारे को अध्ययन करने के लिए मन पे कंट्रोल करना है। तो मन पे कैसे, मन पे कंट्रोल करने के कई साधन हमारे शास्त्रों में बताए हुए हैं। तो पहले तो एक साधन जैसे बताया हुआ है कि भाई जैसे आप लोगों ने बंदर देखा होगा, तो मदारी जब एक रॉ बंदर होता है, जो रॉ बंदर होता है तो वो तो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से दूसरे पेड़ घूमता रहता है। अब मदारी उसको पकड़ लेता है। अब मदारी उसको पकड़ लेता है तो फिर उसके 200 फुट की रस्सी उसके गले बांध देता है और एक खूंटा लगा देता है।
तो खूंटा लगाने के बाद अब बंदर जो रोज उछल रहा था पेड़ों पे, वो कहता है ये तो मैं 200 फुट से ऊपर जा ही नहीं पा रहा। तो 2-3 बार जाता है तो गला दबता है उसका, तो गला दबता है तो वो कहता है मेरी लाइफ ही 200 फुट की है। और 2-3 दिन उसको तकलीफ, 1-2 दिन तकलीफ होती है, वो एडजस्ट करता है, फिर 200 फुट में ही उछलता है, वो लाइफ एडजस्ट कर लेता है अपनी, तो मेरी लाइफ ही इतनी है, यही है। अच्छा, फिर दूसरे बाद क्या होता है, फिर 5-6 दिन के बाद फिर मदारी क्या करते हैं, 200 फुट को 100 फुट कर देता है। वो कहता है कल तो मैं वहां तक गया था, आज सब यहां तक रह गया। तो फिर वो कहता है अब गला दबता है तो जान सबको प्यारी है, तो अब वो 100 फुट में घूमता है, अब वो उधर की बात सोचता ही नहीं है 200 फुट की, अब 100 फुट में लाइफ कर देता है। वो ऐसे करते करते 0 फुट पे ले आता है, और फिर मदारी जो है साइकिल चलाता है और बंदर कंधे बैठ देता है, और वो भागता ही नहीं। तो ऐसे ही ये मन जो है एक बंदर है, उसको थोड़ा सा सारी चीजों को एकदम से छोड़ दोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे फिर सब समोसा भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, नॉनवेज भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, उसको तो तकलीफ हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। पहली बात तो कोई चीजें एकदम से करने से मन में तकलीफ सी होती है। तो दूसरा, मन का एक नेचुरल नेचर समझना चाहिए कि मन का नेचुरल नेचर क्या है। मन का जो नेचुरल नेचर है ना, कि मन जो है मरना नहीं चाहता। हम लोग कभी मरना नहीं चाहते। मान लो 100 साल की उम्र हो जाए हमारी, तो 100 साल के बाद हमारा शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है, तो अब यमदूत जी आए, जी आप चलो, अब तो बोलो जी मेरा मन ठीक है, तो वो ठीक है, मैं तो कुछ थोड़ा बहुत 100 साल और दे दो। तो मतलब कोई भी आदमी क्या है कि मरने से डरता है, इसलिए सब जगह काम करता है। तो उसका एक नेचुरल नेचर है कि अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि उसकी 200 साल लाइफ कर दो किसी आदमी की, तो उसके 200 साल के बाद उससे पूछा जाए अभी अब तो चलो, वो कहता है सब कुछ ठीक है, मन ठीक है, मेरा सबको हजम भी हो रहा है, तो अभी करो। इसका मतलब ये है कि हमारे को अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहने का शौक है, हम चाहते हैं। हम पहले मर जाते हैं, हमारी एक मजबूरी है, और हम चाहते नहीं है मरना। तो हमारा एक कानून बन गया कि हमारे को अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहना चाहिए। एक मन का नेचर है। दूसरा मन का नेचर क्या है कि भाई जो मन जो है वो कुछ ना कुछ पढ़ना चाहता है, ज्ञान लेना चाहता है। वो आज कुछ पढ़ लिया, आज हमने, जैसे आप कुछ ज्ञान ले रहे हो, अब कितना भी ज्ञान ले लो आप, आपका पेट ही नहीं भरता। अब सिविल का वकील है, क्रिमिनल भी पढ़ लेता है, वो और ज्ञान ले लो। तो हम जितना भी ज्ञान ले लेते हैं, तो उसके बाद भी मन को तृप्ति नहीं होती, और ज्ञान लेने की इच्छा हो जाती है। आदमी बूढ़ा हो जाता है, रिटायर हो गया, सुबह अखबार चाहिए, क्यों? नॉलेज गेन करना चाहता है। एक नेचुरल नेचर है, उसका कसूर नहीं है वो। तो हर एक आदमी अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहना चाहता है। दूसरा बात है, हर एक आदमी अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड नॉलेज चाहता है। फिर हर एक आदमी इस दुनिया में सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। अच्छा, किसी को नहीं भी सिखाओ, बच्चा पैदा हो गया, उसको जंगल में छोड़ दो, तो उसको सिखाना नहीं पड़ता। किसी माँ ने आज तक बच्चे को ये नहीं बताया होगा, बेटा जिंदगी में सुख चाहना, दुख ना चाहना। ये उसका नेचुरल नेचर है, उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। और सुख कितना चाहिए, वो भी अनलिमिटेड चाहिए। वो अनलिमिटेड सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो अलग बात है। कि वो आज अगर मेरे पास मुकेश अंबानी भी मैं बन जाऊं, तो फिर मैं सोचूं मेरे को बिल गेट्स बनना है। तो वो, क्योंकि वो उसका नेचर क्या है, अनलिमिटेड चीज चाहने का, और ये सब चीजें लिमिटेड है। तो हर चीज अनलिमिटेड, उसको सुख चाहिए। और दूसरी बात है, हर एक आदमी इस दुनिया में इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, उसका नेचर है। उसके ऊपर बेटा कहता है पापा डांटते रहते हैं, मम्मी कहती है वो डांटते रहते हैं। कोई आदमी अपने ऊपर जो है किसी को स्वतंत्र रहना चाहता है। हर एक आदमी वो किसी की बंदिश नहीं चाहता। एक नेचुरल नेचर है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जो 5वां नेचर क्या है आदमी का, कि वो ये चाहता है कि दूसरा आदमी मेरे हिसाब से काम करे, मैं उसके हिसाब से काम मत करूं, सब मेरे अकॉर्डिंग चले। घर में हर एक आदमी, आप तो ये तो छोड़ दो कि इंसान तो चलो नेता बनना चाहता ही है, आप कुत्तों में देख लो, बंदरों में देख लो, सब में दादा होते हैं उनके। सब वो बाकी सारे बंदर जो हैं उसके हिसाब से चलेंगे। वो कहता है सब मेरे हिसाब से चलो, नहीं, उसको उनकी लड़ाई हो जाती है, उनको उनके अंडर में चलना पड़ता है। तो एक नेचुरल नेचर है कि लोग मेरे हिसाब से चलें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सबका ये नेचुरल नेचर क्यों है, फिर सभी का एक जैसा क्यों है। अब इसमें कोई धर्म की बात तो है नहीं। अब हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, वो सबका एक जैसा नेचर है कि हर कोई आदमी जो है
मरना नहीं चाहता, हर एक अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहना चाहता है, और कोई भी आदमी अनलिमिटेड नॉलेज चाहता है, हर एक आदमी अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहता है, और हर एक आदमी जो है इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, और हर एक आदमी लोगों को गवर्न करना चाहता है। वो कर पाए ना कर पाए अलग बात है। तो मेन बात है कि हम सबका एक जैसा नेचर क्यों है ऐसा। तो कोई ऐसा आप में से कोई ऐसा बता सकता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बता देता हूँ। तो उसमें हमारे शास्त्रों की बातें हैं सारी। तो शास्त्र क्या है कि हमने संस्कृत पढ़ी नहीं, तो शास्त्र पढ़े नहीं, इसलिए नॉलेज ही नहीं है। वो सारी चीजें संस्कृत में। मैं कोई अपने से अपने सा मेरा एक भी वर्ड नहीं बोल रहा मैं अपनी तरफ से, वो सब शास्त्रों की बातें। तो मेन बात यह है कि वो ये हम सबका एक जैसा नेचर क्यों है ऐसा, और हम सब अनलिमिटेड क्यों चीज चाहते हैं। तो उसका एक रीजन बताते हैं। जैसे एक लोहे का पार्ट है, अभी लोहे के पार्ट को मैंने निकाल लिया, तो इस पार्ट का जो केमिकल कंपोजिशन है और जो मैंने इसका पार्ट तोड़ा है, उन दोनों का सेम रहेगा। जैसा केमिकल कंपोजिशन इसका है उसी का उसके पार्ट का रहेगा। तो जो मैं नाम का चीज है शरीर के अंदर, वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश होने की वजह से वो परमात्मा जो वो कभी मरता नहीं है। अनलिमिटेड नॉलेज भी उसी के अंदर है, और अनलिमिटेड हैप्पीनेस भी उसी के अंदर है, और उसको कोई वो इंडिपेंडेंट भी वही है, और लोगों को गवर्न भी वो करता है। तो हम उसके पुत्र होने की वजह से हमारा इनबिल्ट नेचर हो गया कि हम भगवान का नेचर हमारा आ गया। तो हम लोग जो है सब चीज अनलिमिटेड चाहते हैं। और प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो गई हम लोगों की कि उस अनलिमिटेड चीज को हम लिमिटेड चीज में ढूंढने लग गए। वो हमें चाहिए सब चीज अनलिमिटेड। अब वो अनलिमिटेड चीज कितनी भी और लिमिटेड चीज कितनी भी ले लो आप, वो जितने लो उसके बाद फिर और चाहिए, उसके बाद फिर और चाहिए, उसके बाद फिर और चाहिए। तो हम लोगों को अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। जब हमारा मन का नेचर का इंक्लिनेशन अनलिमिटेड चीज की तरफ होगा, तो ही हम खाने पे कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो सुख चाहना आदमी का नेचुरल नेचर है, वो कहीं ना कहीं ढूंढेगा, वो खाने में ढूंढेगा, कहीं भी ढूंढेगा। आप उसको रोक नहीं सकते, आप किसी भी तरह से रोक नहीं सकते। और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। मन एक क्षण को भी कर्मा नहीं रह सकता किसी का भी, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, एक क्षण के लिए भी कर्मा नहीं रह सकता। अब प्रॉब्लम ये हुई कि हमने अपने सिद्धांतों को माना नहीं, सनातन धर्मों के, और हम जो अनलिमिटेड चीज चाहते हैं उसको लिमिटेड में हम ढूंढने लग गए। अब ढूंढते रहो फिर क्या होगा, कितना भी चीज इकट्ठे करते चले जाओगे, फिर अशांत रह जाओगे, फिर इकट्ठे रहोगे, फिर अशांत रह जाओगे। तो भैया डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन जो चेंज करने से ही काम चलेगा हमारा। तो अब ये इसके बिना कोई चारा नहीं है, हम स्वस्थ भी नहीं रह सकते। तो दूसरी बात ये है कि देखो इससे क्या फायदे होने वाले हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इस शरीर के अंदर 20 चीजें होती हैं। तो 20 चीजें टोटल, तो जब हमारा ये शरीर छूटता है तो ये बाकी चीजें कहाँ जाती हैं फिर? तो ये कभी मरती नहीं है। 19 चीजें वो दूसरे शरीर में चली जाती हैं। अब आई थी तो कहीं और से आई थी। तो हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारा जो प्राण है, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम कहीं भी चले जाए, ये खत्म नहीं हो सकते कभी भी। तो हम किसी भी योनि में चले जाएंगे, प्राण वही रहेंगे हमारे। अब हम अगर मान लो संसार से बहुत दुखी हो गए हम लोग, तो दुखी हो गए तो जी मैं सुसाइड कर लेता हूँ। अरे तो सुसाइड करने से क्या हो जाएगा? ये शरीर छोड़ दोगे तो बाकी जो अशांति तो मन में है ना, तो मन को कहाँ ले जाओगे? तो मन फिर जहां भी जाओगे फिर अशांत रहेगा वो। तो मन का इलाज तो करना पड़ेगा ना। मन मनमोहन से संबद्ध होकर ही शांत रह सकता है। निष्कर्ष ये है। तो हमारे को अपना, और फिर हमारे को संसार में कैसे काम करना है कि हमारा मन जो रहे तो भगवान में या गॉड में रहे या अल्लाह में रहे, और हम संसार का काम करें। तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताया गया है, किसी एक नर्स होती है हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल की जो नर्स है वो जो क्या करती है कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनको किसको 1 बूंद देनी है, किसी को 2 बूंद दवाई देनी है, तो वो सारा काम करती है। कोई बच्चे को मार नहीं देती हो, तो जिसको 1 बूंद देनी है 1 बूंद भी देती है। पर वो किसी बच्चे से उसका अटैचमेंट नहीं होता। वो बच्चा पैदा होके मर गया, वो एक्टिंग में सॉरी बोल दिया, खत्म बात। पर उसका अपना बच्चा जो घर में है, उसका सारा अटैचमेंट वहां होता है। तो हमारे को जैसे वो नर्स काम कर रही है कि हम संसार का काम जो है जो करें वो बिना अटैचमेंट के काम करें। और अटैचमेंट तो जो बच्चा हमने माना जो घर पे है, वो परमात्मा को मान लें। तो ध्यान उधर का रखें तो संसार का काम करें।
तो ही मन शांत रह सकता है। तो ये करना पड़ेगा। अगर इससे दो फायदे होने वाले हैं।